you're audible. Sir. Yes, yes, please go ahead. Sir, how to prepare Reliance interview? Reliance, I will tell you. Reliance, I have questions also of Reliance. Okay. I'll tell you how to prepare and what they actually ask in the interview. Okay. Yes, No sir. need to worry. I'll tell you. I'll tell you. Okay. So, hello guys. How are you? First of all, hello. Hello. Yes, Sushant, you're audible. Guys, please Yes. speak up, guys. Yes, sir. Audible. See, first thing is the first rule is my name is Sushant, so you can address by my name. Okay. And the second thing is as if you are new to this session, I have taken a session before this. You have to. It's a two-way communication. Okay. I don't usually take sessions that I am only speaking and you guys are quiet. So I don't like that, and I don't even entertain anyone to do that. Okay. So you have to speak up with me, and I'll ask few basic questions. Okay. And then you have to answer that particular questions. Okay. So first of all, I'll share my screen. Please let me know if my screen is visible or not. And I would like to like apologize you all guys, because due to Teams issue I was unable to connect on time. Really sorry. I wasted your precious 15 to 20 minutes. Sorry for that. Okay. Okay, so is my screen visible, everyone? Hello? Yes, Sushant. Yes. And Suhas, is my voice crystal clear? Is it crystal clear? Yes. It's crystal clear. Your voice is okay. Okay, so sorry for the delay. Again, I'm saying sorry for the delay, and I made you people waiting. So, how are you, Akshay, Ibrahim, Pooja, Praveen, Sahil, Sanjay, Shubham, Tushar? Yes, Akshay. Akshay, Yeah, Akshay, speak up. How are you? What are you doing in your life currently? Are you in production? You are in BTech? How are you? Like, please tell me about yourself. A short introduction, 1 minute. 1 minute or even 30 seconds will do. Okay, Ibrahim, I spoke with Ibrahim. No issues. Pooja, yes, Ibrahim. just tell Ibrahim. anything. So, Yes, yes. Just give a short introduction about yourself, like what you are doing, like that. Okay, please, please. Yes, Pooja, please go ahead. Hello. yes, sir. Yes. Yes. Just give a short introduction about Sir, yourself, like yes. my name is Pooja Kushwaha and I have done my diploma in chemical engineering. I can pursue my BTech in chemical engineering in the final year. Okay. In which college you are pursuing your final year? Shahid Bhagat Singh State University in Firozpur. Okay, great, great. And from which college you have completed your diploma? Government Polytechnic College Okay, okay. Praveen, in Praveen Jalandhar. Kumar. Okay, okay, Pooja. Great. Praveen Kumar. Hello, sir. I'm Praveen Yes, Kumar. yes. Huh. I'm currently pursuing my BTech degree, fourth year, final year in chemical engineering from Amrita University. Oh, okay, okay. Great, great. Sahil Dalvi. Sahil. Okay. And guys, last person Shubham Arote. So I will use my as qualified gate 3 times. He has an OIT 46, and he is an IIT BHU pass out. And we both were batchmates in our BTech. Shubham Arote. So I must introduce himself. He can't introduce himself. Welcome, Okay. Shubham. Thank you for joining this session. Yes. Okay.
See guys, today's agenda, what I am going to explain you guys is what actually chemical engineers do and what are their roles in the various plants, and what actually the subjects or the curriculum you must study so that you can have a good grasp or good understanding of the chemical engineering concept. Okay. The first thing to be very clear and very precise is if there are 100 chemical engineers, 70 or 80 people will work in the production jobs. 10 to 15 people will work in the process or any proposal jobs. 6 to 7 people will leave this field, and 5 people will be there who will be doing something different in the sense they would be working in PSUs or working in the BRC or something like that. So nearly you must try to understand that even in the PSUs also, in the public sector organizations also, nearly 90% of the jobs are related to the production. So as most of the people, I understood that the target audience, most of the people are, they are the BTech guys. Okay. So you must be very clear about your job. Okay. As you are very clear when it comes to CSE, people do coding, people do data science, people do data analyst. When it comes to chemical engineering, most of the people ends up doing production job. However, what amount of talent they have. So in India, most of the people are going to end up in production job. Now, as everyone know that production jobs are they are the shift jobs. Okay, so most of the people then they try to migrate themselves in the process engineering jobs where they want to use their domain knowledge to design the stuff. Okay, so that all career second thing, what all curriculum you need to study thoroughly, that I'll explain. Some few basic concepts which are asked in interview regarding the pumps, what are the NPSH, what is the what are the pump curve, what is the best efficiency point of the pump, that I'll discuss. In the heat exchangers, what is the NTU, number of transfer unit, what is the heat HTU, that I'll discuss. How to calculate the how do we generally calculate the efficiency of the heat exchangers, what are heat exchangers, that I'll discuss. I'll also discuss the distillation column. Okay, what is the distillation column and what are the types of distillation column, and on what basic concept the distillation operates. Okay, so it would be going to be a two-way session and I'm going to ask you guys also, so let's keep it a communication. Okay, it's not a session. You can address by my name. You can ask doubts in between. We have Shubham also with us, who is technically very strong person. If you want to ask anything regarding GATE, because he is a 3 times GATE qualifier and very strong technical background, so you can ask with him. Suhas is a person who has been working with as a process engineer. You can ask with him. Let's try to explore opportunities in chemical engineering. Okay, so you can anytime just open your mic and can ask question. It's free. Okay, no doubt about that. And okay. Okay. You can ask in Hindi also. There is no language barrier. Okay? Any language. Okay, Kannada is there, Marathi is there, English is there, Hindi is there. Okay. Okay. See what chemical engineer do. Okay, my name. Okay, see petroleum and petrochemicals. Now, as you all know, the most of the means the revenue that chemical engineers earn in India, that is via the petroleum and petrochemicals, guys. If you see Reliance Industries Limited, Indian Oil Corporation, Hindustan Petroleum Corporation Limited, all these people are mostly associated with the crude oil. Now, what is crude oil? A crude oil is called as a black gold, guys. What is a black gold? A black gold means it has several components in it. We do the fractional distillation of that component, and the cuts of each component are so valuable that they are valuable in all of the ways. Okay, so as we all know, crude oil, the major exporter of the crude oil to the India is the Gulf countries. India itself don't have any crude oil. Okay, so last week I and Shubham went to Marine Lines, and we were very excited to see the ONGC this ship in which they were extracting the oil. We saw the ONGC ship, we saw the L&T ship, and ONGC and L&T both. What we do is we extract few
liters of oil from the sea, and we get that crude oil. But the major exporter of the crude oil is the Gulf countries, because as we all know, जैसे हम जमीन खोदने के बाद हमको पानी मिलता है, वैसे गल्फ कंट्रीज में जमीन खोदने के बाद ऑयल मिलता है. तो वो जो ऑयल होता है ब्लैक गोल्ड क्रूड ऑयल, तो उसका हम लोग क्या करते हैं केमिकल इंजीनियर्स, उसको हम लोग एक फ्रैक्शनेटर में डालते हैं. तो क्या होता है, एक 10 चीज का कंपोनेंट हम एक सॉल्यूशन में मिलाते हैं. हर एक चीज का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है. तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो जल्दी वेपराइज हो गया, उसको हमने कंडेंस कर लिया, उसको हमने स्टोर कर दिया. तो ऐसे हमारे पास कट्स मिलते हैं. तो कट्स मिलने के बाद ईच कट्स का बहुत ज्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट होता है. जैसे अगर आपको पता है कि टार, जो डांबर का जो रोड बनता है, दैट इज वन ऑफ द कट्स. आपका व्हाइट पेट्रोल जो है एरोप्लेन विच यूजेस, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कट. द सेकेंड कट इज ऑल्सो the petrol, that is one of the cut. Kerosene, that is one of the cut. So that actually is done by the IOCL and this HPCL. If you come here and just I'll type over here fractionator, or I would say distillation. Okay, see here, are you able to see this? Hello? Yes, Sushant. Yes. Hello? Yes. Sushant. So if you see here, so I am getting, see here, I am getting naphtha, I am getting gasoline, I am getting kerosene, I am getting diesel, I am getting fuel oil, and I am getting residue. Heated crude oil. अभी इसके पहले क्या होता है, प्रीहीटिंग होता है, स्वीटनिंग होता है ऑयल का. डायरेक्टली हम क्रूड ऑयल जो है जो फ्रैक्शनेटर में नहीं डाल सकते. सो देयर आर वेरियस प्रोसेसेस व्हिच ऑकर्स बिफोर पुटिंग द क्रूड ऑयल इनटू दिस सिस्टम. तो ये केमिकल इंजीनियर्स का काम रहता है. आईओसीएल में जो वर्क रहता है मोस्टली वो यहीं पे रहता है, फ्रैक्शनेटर्स पे. हम लोग क्रूड ऑयल ले रहे हैं, उसके पहले एक फ्रैक्शनेटर में डालने से पहले उसमें स्वीटनिंग होता है, प्री हीटिंग होता है, बहुत ज्यादा उसके ऊपर ऑपरेशंस किए जाते हैं, एंड देन वी पुट इट इनटू फ्रैक्शनेटर एंड वी गेट नंबर ऑफ कट्स, एंड दैट कट्स आर वेरी मच यूजफुल फॉर आवर daily usage. So this is one of the main revenue which India is generating via chemical engineer. तो ये रिफाइनरीज जो है, जो आप अंबानी का जो मेजॉरिटी टर्नओवर है वो दैट कम्स फ्रॉम द रिलायंस इंडस्ट्री, दैट इज फ्रॉम द रिफाइनरीज. रिफाइनरीज मतलब रिफाइनिंग करना, मतलब क्रूड ऑयल का शुद्धिकरण करना, जिसके कारण हम लोगों को अलग अलग पार्ट्स मिल सके. तो कैन एनीवन एक्सप्लेन मी द बेसिक फिनोमिनॉन ऑन विच डेस्टिलेशन ऑकर्स? एनीवन? कौन सा एक बेसिक फिनोमिनॉन है जिससे डेस्टिलेशन ऑकर होता है? रिलेटिव वोलेटिलिटी. ग्रेट. रिलेटिव वोलेटिलिटी और टेम्परेचर डिफरेंस. Yes, टेम्परेचर boiling point डिफरेंस. temperature. हाँ, ग्रेट. और एनीवन? बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट. अगेन अगेन मास ट्रांसफर बहुत लोगों ने पढ़ा होगा ना. हेलो, देखो गाइस, डेस्टिलेशन के पहले तो तीन बेसिक फंडामेंटल्स है. एक है आपका सिंपल डेस्टिलेशन जो रिलीव्स इक्वेशन के ऊपर चलता है, ln(f/w) इंटीग्रेशन ऑफ xw/xf dx xf स्टार माइनस ऑफ xw. ये जो होता है, ये सिंपल डेस्टिलेशन आपका जो लैबोरेटरीज में करवाते हैं, दैट इज सिंपल डेस्टिलेशन. वो रिलीव्स इक्वेशन है आपका. ओके. द सेकेंड पार्ट ऑफ डेस्टिलेशन इज योर फ्लैश डेस्टिलेशन. फ्लैश डेस्टिलेशन में क्या होता है, आपका प्रेशर जो पीआरवी है ना, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व रहता है, और प्रेशर इतना उसको रिड्यूस किया जाता है कि फ्लैश कॉलम में डालते ही ऊपर वेपराइज हो जाता है और नीचे आपका लिक्विड हो जाता है. पीआरवी हीटर रहता है, पीआरवी रहता है, और सीधा फ्लैश कॉलम में रहता है. जो थर्ड मोस्टली यूज होता है ना इंडस्ट्री में, दैट इज योर दिस. आई एम अनेबल टू स्विच यार. That is your your fractionator. फ्रैक्शनेटर में क्या होता है कि आपका जो बेसिक फिनोमिनॉन जो डेस्टिलेशन जो वर्क करता है, दैट इज नथिंग बट योर रिलेटिव वोलेटिलिटी. अभी रिलेटिव वोलेटिलिटी क्या है, तो वेपर
लिक्विड सोल्यूशन का वेपर प्रेशर का डिफरेंस, दैट इज नथिंग बट योर रिलेटिव वॉलेटिलिटी। ओके, तो वेपर प्रेशर अगर बढ़ता है, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, अगर किसी मेरा एक सॉल्यूशन में दो लिक्विड है, अगर किसी का वेपर प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट उसका कम रहता है या ज्यादा रहता है? हेलो, ज्यादा रहता सर। अगर किसी सॉल्यूशन में दो लिक्विड्स है और दो लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है या ज्यादा रहता है? ज्यादा रहता सर। इब्राहिम, थिंक वन सेकेंड। अगर आपका दो लिक्विड्स है, अगर आपका वेपर प्रेशर ज्यादा रहेगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट जल्दी ऑकर होगा ना। सिंपल सी बात है, अगर आप पानी उबाल रहे हो, आपका वेपर जल्दी जल्दी जनरेट हो रहा है, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर वेपर प्रेशर मेरा ज्यादा है तो मेरा जल्दी जल्दी लिक्विड बॉईल हो गया, जो वेपर जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा वो ज्यादा एग्जर्ट करेगा, मतलब कम टाइम में ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा, जो कि इक्वलाइज होगा मेरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और मेरा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम रहेगा। इसलिए मोर वोलेटाइल कंपोनेंट हैज हाई वेपर प्रेशर एंड लेस बॉइलिंग पॉइंट। लो वोलेटाइल कंपोनेंट हैज लो वेपर प्रेशर बट हायर बॉइलिंग पॉइंट। हायर बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या? 100 डिग्री सेल्सियस हायर बॉइलिंग पॉइंट है, 90 डिग्री सेल्सियस लोअर बॉइलिंग पॉइंट है। तो जो हमारा जो बेसिक, इसलिए तो हम लोग रिलेटिव वोलेटिलिटी करते हैं ना, पी ए नॉट अपॉन पी बी नॉट। तो रिलेटिव वोलेटिलिटी हम लोग क्या बोलते हैं कि द रिलेटिव वोलेटिलिटी शुड बी ग्रेटर देन 1। वो कभी भी वन हो तो पॉसिबल ही नहीं है। डेस्टिलेशन इज नॉट पॉसिबल। डेस्टिलेशन क्यों पॉसिबल नहीं है? दोनों भी लिक्विड 70 डिग्री सेल्सियस पे आपका वेपराइज हो रहे हैं, तो क्या मतलब? दोनों कंडेंस हो रहे हैं, दोनों, फिर जैसा आपका सोल्यूशन है पॉट में, वैसे का वैसा सोल्यूशन मेरा कंडेंस होने के बाद आ रहा है। समझ रहे हो? हेलो, यस सुशांत। यस। आपको बोर लग रहा है गाइस किसी को? एनीवन, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है? प्रवीण, साहिल, संजय, इब्राहिम, अक्षय, समझ में आया बेसिक फिनोमिनॉन डिस्टिलेशन का जिसके ऊपर वर्क करता है? गाइस स्पीक अप। Yes, sir. देखो, माइक खोलिए, देखिए माइक खोल के बताइए, नहीं समझ में आया, अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिंदास एकदम। क्योंकि 16 पीपल थे, 10 हो गए, इसलिए। वेपर प्रेशर का थोड़ा बेसिक बताओ। Hello, sir. वेपर प्रेशर। हाँ हाँ, यस यस, हेलो सर, नाम से एड्रेस कीजिए। ओके, हाँ बोलिए। Sir, my one question my side. How to measure pressure on distillation column? देखो, प्रेशर अगर आपको तो प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस आपके होते हैं ना, बेलोज होते हैं, या फिर आपका जो आप इंडिकेटर लगाते हैं, प्रेशर इंडिकेटर, वो प्रेशर ही जो भी तो आपके पीटी रहेंगे वो डिस्टिलेशन कॉलम में, तो आपको प्रेशर पीटी आपको ट्रांसफर करेगा, प्रेशर ट्रांसमीटर रहेंगे वो आपको डीसीएस में आपको शो करेंगे, या आपका जो भी पीजी रहेगा या पीजी पे भी शो करेंगे। जो पीजी रहते हैं वो आपके डायरेक्टली इन प्लांट इन डिस्टिलेशन कॉलम पे लगे रहते हैं। देखो, कोई तो वेपर प्रेशर का मुझे कंसेप्ट पूछ रहा था। देखो, वेपर प्रेशर का कुछ कंसेप्ट नहीं है। आप पानी उबाल रहे हो, अभी आप पानी जब आप उबाल रहे हो तो आप जब पानी में अपने हीट दिया तो आपके वेपर ऊपर जनरेट हो गए। तो बॉइलिंग कब होता है? जब आपका ऊपर बना हुआ वेपर है, जो आपका जो फ्री सरफेस होता है लिक्विड का, मतलब सबसे टॉप मोस्ट जो सरफेस का लिक्विड का जो लेयर होता है, उसके ऊपर एक प्रेशर एग्जर्ट करता है। अगर वो जो प्रेशर का जो मेजर है फ्री सरफेस का, अगर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया तो इसका ये मतलब है कि मेरा बॉइलिंग पॉइंट चालू हो गया। अगर मेरा सराउंडिंग प्रेशर ज्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि मेरा वेपर प्रेशर अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जर्ट करने में उसको 100 डिग्री सेल्सियस लग रहा है, लेकिन मेरा सराउंडिंग प्रेशर ज्यादा है, अभी उसको ज्यादा काम करना पड़ रहा है, हीट ज्यादा लेना पड़ रहा है वाटर को, और ज्यादा वेपर उसको क्रिएट करना पड़ रहा है, और वो ज्यादा वेपर जो है वो फ्री सरफेस के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। दैट्स व्हाई आपको कभी भी नहीं बोलना इंटरव्यू में कि वाटर विल, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, कितना है, 99.63 है, बट दैट इज फॉर द 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यू हैव टू डिफाइन द प्रेशर गाइस, बिकॉज योर बॉइलिंग पॉइंट इज टोटली एंड टोटली depend upon your surrounding pressure na. Boiling point is nothing but the pressure exerted by the vapor, the vapor pressure equal to the atmospheric pressure, अभी surrounding pressure। अभी surrounding pressure अगर atmospheric pressure है तो ठीक है, इसलिए तो आप लोग कुकर में सब्जी पकाते हो ना,
सिंपल सी बात है, कुकर में सब्जी क्यों पकाते हो? आपको पानी का बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट करना है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो गया, इसका ये मतलब है कि आपको कुकिंग के लिए पानी चाहिए, वेपर चाहिए? हेलो हेलो इब्राहिम, अक्षय, व्हाट डू यू नीड फॉर कुकिंग? पानी चाहिए ना आपका। अगर आप राइस पका रहे हो तो आपका राइस जितना पानी में रहेगा उतना अच्छा है ना, कुकिंग फास्टर होगा ना। वेपर वेपर का लेके क्या करो? वेपर का सीपी कम है ना। वेपर में जो सीपी है, सीपी व्हाट इज सीपी? जूल पर केजी केल्विन। तो जो वेपर जो हीट स्टोर करेगा वो कम है एज कंपेयर टू वाटर। वाटर ज्यादा हीट स्टोर करता है। तो मुझे कुकिंग फास्टर करने के लिए मेरे कुकर के पॉट में आई वुड रिक्वायर वाटर, इजंट इट? आई विल नॉट रिक्वायर वेपर। मुझे ये चाहिए प्रेशर। इसलिए तो मैंने प्रेशर कुकर का कंसेप्ट हमने लाया। प्रेशर कुकर में आपका फूड इसलिए ज्यादा जल्दी बनता है कि आप क्या कर रहे हो? सराउंडिंग प्रेशर बढ़ा रहे हो। प्रेशर आपका बढ़ाया, बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ गया, पानी आपको ज्यादा देर मिला, पानी आपको ज्यादा देर मिला, इसका मतलब आपको कुकिंग फास्टर हो रहा है। कुकिंग फास्टर हो रहा है एज कंपेयर टू योर ओपन पैन। Okay, okay, understand. अंडरस्टैंड? ओके। Yes, तो sir. यही है क्रड डिस्टिलेशन, क्रड डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन, यही होता है। वैक्यूम डिस्टिलेशन में क्या होता है? अभी प्रेशर कुकर का उल्टा है वैक्यूम। वैक्यूम मतलब बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वैक्यूम डिस्टिलेशन आप कहाँ यूज करोगे? एनीवन? वैक्यूम डिस्टिलेशन आप कहाँ यूज करोगे? लो टेम्परेचर पे हम लोग मटेरियल रिकवरी कर सके इसलिए। करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। करेक्ट। वैक्यूम मतलब मेरा डिस्टिलेशन कॉलम का है, मैं अंदर से प्रेशर खींच रहा हूं और उसको वैक्यूम में ऑपरेट कर रहा हूं। वैक्यूम में मैंने ऑपरेट किया तो जो हीट सेंसिटिव मटेरियल्स होते हैं जो कि 1 एटमॉस्फेरिक पे एक्सप्लोइट करने वाले हैं, तो मैं क्या करूंगा? उनको 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही मैं उसको वेपराइज करना चाहूंगा। वो कब होगा? जब मैं सराउंडिंग प्रेशर कम रखूंगा। सराउंडिंग प्रेशर मेरा कम हो गया, वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेरा कम हो गया, तो जो लिक्विड 100 डिग्री सेल्सियस पे एक्सप्लोड होने वाला था वो 90 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल करके इट विल बिकम द वेपर। इसलिए हम लोग वैक्यूम डिस्टिलेशन यूज करते हैं, ताकि हम लोग सराउंडिंग प्रेशर कम करते हैं, ताकि जो हीट सेंसिटिव मटेरियल है वो कम कम। दैट्स व्हाई वी यूज द वैक्यूम डिस्टिलेशन। सिंपल। वैक्यूम इज अपोजिट ऑफ योर प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में हम लोग प्रेशर बढ़ा रहे हैं, वैक्यूम डिस्टिलेशन में हम लोग प्रेशर कम कर रहे हैं। तो प्रेशर कुकर में हमारा आइडियोलॉजी क्या था कि पानी रहे, मेरा पानी जल्दी ना वेपराइज हो। लेकिन वैक्यूम डिस्टिलेशन में मेरा कंसर्न क्या है कि मेरा लिक्विड रहे, मेरा लिक्विड जल्दी वेपराइज होना चाहिए, बिकॉज हीट सेंसिटिव मटेरियल है, एक्सप्लोड हो सकता है। ओके, सो ये है। तो प्रोसेस डिजाइन ऑफ रिएक्टर ये होता है: फ्लूइडाइज्ड कैटालिटिक क्रैकिंग, हाइड्रो क्रैकर्स, रिफॉर्मर्स, मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस ऑफ द रिफाइनरी यूनिट्स। अभी फॉर एग्जांपल सिंपल है, अगर आपको डिस्टिलेशन कॉलम के ऊपर मटेरियल बैलेंस लगाना है तो फीड इज इक्वल टू डिस्टिलेट प्लस बॉटम प्रोडक्ट। फिर आप लोग मोर वोलेटाइल कंपोनेंट पे अगर आपको लगाना है तो एक्सएफ इंटू एक्स, एक्सएफ इंटू एफ इज इक्वल टू एक्स डी इंटू डी प्लस एक्स डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू। आपने एक्सएफ क्या आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इन द फीड, XD क्या है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इन द डिस्टिलेट, XW क्या है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इन द XW। तो इसके ऊपर आप लगा के एंड देन फिर आप उसको घुमाते हैं, उसके ऊपर बैलेंस वगैरह लगा के आपका मैकैप-थैली मेथड आ जाता है, जिसमें आप लोग सिंपली क्या करते हैं, ट्रेज वगैरह कैलकुलेट करते हैं। एज सिंपल एज दैट, आप लोग उसमें ट्रेज वगैरह कैलकुलेट करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने एक जो आर्टिकल है IIT KGP का वो निकाल के रखा था, जहाँ पे ये आपको दिख रहा है सबको? व्हाट इज दिस? एनीवन मुझे बता सकते हैं ये क्या है? एनीवन? इब्राहिम, अक्षय? बाकी तो मुझे इंटरेस्टेड नहीं लग रहे ज्यादा। VLE कर्व। VLE कर्व, इसका यूज क्या होता है? इसका यूज क्या होता है? इससे आप क्या करते हो, क्या पता चलता है आपको इससे? बहुत इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ ट्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं सर। बहुत मतलब गेट में भी। आर यू सुशांत आर यू श्योर? आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो हेलो हेलो, आ रहा है आवाज? ब्रेक हो रही है। एक मिनट आ रहा है आवाज? यस यस हाँ सुहास, एम आई ऑडिबल? यस यस यस। ओके ओके। हाँ, इब्राहिम किसी ने बताया प्लेट्स फाइंड कर सकते हैं, इज इट राइट? साहिल, संजय, Sir, how composition changes with temperature and pressure it shows. great, who told this?
Sir, किसने Ibrahim. बताया? इब्राहिम, ग्रेट, करेक्ट आंसर। ये ग्राफ कैसे प्लॉट होता है आपको मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों के सिलेबस में मल्टी कंपोनेंट डेस्टिलेशन पढ़ाते नहीं है। सुहास, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है ना? यस यस यस। ओके। हमारे सिलेबस में हम लोग मल्टी कंपोनेंट डेस्टिलेशन पढ़ते नहीं है। मल्टी कंपोनेंट मतलब क्या? एक सॉल्यूशन में 3 से ज्यादा अगर सेपरेट सेपरेट कंपोनेंट्स है तो हम लोग पढ़ते नहीं है। व्हाई? बिकॉज उसका XY ग्राफ हम लोग जनरेट नहीं कर सकते। मल्टी कंपोनेंट में इट इज हाईली डिफिकल्ट, इसलिए मल्टी कंपोनेंट ICT में ही एक कॉलेज है जहां पे वो MTO2 में मल्टी कंपोनेंट डेस्टिलेशन पढ़ाते, बिकॉज इट इज वेरी हार्ड, वेरी वेरी हार्ड। हम लोग सिर्फ बाइनरी डेस्टिलेशन पढ़ते हैं। बाइनरी डेस्टिलेशन मतलब एक सॉल्यूशन में सिर्फ 2 कंपोनेंट रहेगा, बिकॉज इट इज इजियर टू स्टडी एंड इजियर टू एनालिस। ये ग्राफ जो है दैट इज ओनली फॉर द बाइनरी डेस्टिलेशन। और आपका मैकैप-थैली भी सिर्फ और सिर्फ बाइनरी डेस्टिलेशन के लिए प्लेट्स काउंट करता है, इसलिए किसी इंडस्ट्री में मैकैप-थैली यूज नहीं किया जाता। नन ऑफ द इंडस्ट्री यूजेस मैकैप-थैली मेथड, बिकॉज मैकैप-थैली का एक अजम्पशन ही है कांस्टेंट मोलाल ओवरफ्लो। कांस्टेंट मोलाल ओवरफ्लो मतलब कि अगर मेरा वेपर ऊपर जा रहा है, लिक्विड ऊपर आ रहा है, लिक्विड वेपराइज होके ऊपर जा रहा है, लिक्विड कंडेंस होके नीचे आ रहा है, तो इसका कांस्टेंट मोलार ओवरफ्लो मतलब 2 मोल्स जो है मोर वोलाटाइल कंपोनेंट के वेपर से लिक्विड में जाएंगे और 2 मोल्स लो वोलाटाइल कंपोनेंट के लिक्विड से वेपर में आएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता लाइफ में। इट इज एन आइडियल केस कि 2 ही मॉलिक्यूल एक स्टेज पे, तो इसलिए वो क्या बोलता है, एवरी स्टेज पे इक्विलिब्रियम हो रहा है। अगर किसी ने प्रोडक्शन में जॉब किया है तो आप डेस्टिलेशन में फ्लडिंग और विपिंग नाम का आपने कंसेप्ट सुना होगा। फ्लडिंग में वेपर फ्लो रेट बढ़ता है और विपिंग में लिक्विड फ्लो रेट बढ़ता है, जिसके कारण आपका फ्लडिंग और विपिंग का कंडीशन होता है। फ्लडिंग और विपिंग का कंडीशन मैकैप-थैली अज्यूम ही नहीं करता, वो सिंपल बोलता है कि एवरी प्लेट पे मेरा इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है, विच इज इम्पॉसिबल। इसलिए मैकैप-थैली इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है मैकैप-थैली। उसमें सिर्फ अपने को कि एक्चुअल में मोर वोलेटाइल कंपोनेंट से लो वोलेटाइल कंपोनेंट में कैसे आपका जाता है वो उसने बताया है मैकैप-थैली ने। मैकैप एंड थैली ये 2 साइंटिस्ट ने बस उसके बारे में उसको स्टडी किया है। वो किसी इंडस्ट्री में यूज नहीं होता और इतना आसानी से ट्रे कैलकुलेशन कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। ओके, इज एवरीवन क्लियर? Yes. समझ में आ रहा है सबको ना? या फिर आई मस्ट स्पीक इन लाइक अभी मैं मतलब कैसे समझा सकता हूँ, बिकॉज डेस्टिलेशन मुझे बहुत अच्छे से समझाना था। संजय, साहिल, प्रवीण, पूजा, महादेव, एटलीस्ट कुछ तो बताओ यार। Yes. ओके, विपुल, Sir. इब्राहिम, Yes, sir. Got एनी it. डाउट्स? एनी डाउट्स अप टिल नाउ हियर? अभी इधर तक कोई डाउट्स? ये ग्राफ कैसा है मैं समझाऊंगा आपको। क्या किया जाता है कि मेरा 100 लीटर्स ऑफ सोल्यूशन है। 100 लीटर्स ऑफ सोल्यूशन में मैं पहले क्या करूंगा, सपोज मेरा ए कंपोनेंट है, बी कंपोनेंट है। ए कंपोनेंट लूंगा 10 ml, बी कंपोनेंट लूंगा 90 ml। ओके, ए कंपोनेंट लूंगा 10 ml, बी कंपोनेंट लूंगा 90 ml। उसको हीट करूंगा, मेरा कर्सर दिख रहा है यहाँ पे, हीट करूंगा, ये यहाँ पे जाके वेपराइज हो रहा है, यहाँ पे एम पॉइंट पे। तो मैं ये डॉट यहाँ पे प्लॉट करूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, 20 लीटर्स ऑफ ए लूंगा, 80 लीटर्स ऑफ बी लूंगा। मेरा सोल्यूशन का कंपोजिशन बदला, मैं फिर से हीट करूंगा, ये पॉइंट पे वो वेपराइज हो गया। बबल पॉइंट मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बबल पॉइंट? एनीवन? फर्स्ट वेपर फॉर्म, फर्स्ट बबल फॉर्म, Exactly. फर्स्ट वेपर फॉर्म। करेक्ट आंसर। जो पहला वेपर जो होता है ना सॉल्यूशन का, पहला एकदम पहला, उसको हम लोग बोलते हैं बबल पॉइंट। मतलब मेरा लिक्विड उड़ना चालू हो गया, इट स्टार्टेड टू बिकम वेपराइज, so that's why this curve came in this way. So what I'll do is, when I came here, 50 liters of A, 50 liters of B, I'll start giving heat, and my liquid will vaporize here. So at what temperature? Suppose 80 degrees Celsius. Okay, 80 degrees Celsius. Then this point came. Then I will again change 60 A, 40 B, and I'll again add heat, and it will again vaporize. At what temperature? This suppose 30 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा करते 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 मेरा ये नीचे वाला कर्व आएगा, कौन सा? MQ और TA वाला कर्व आएगा। अभी उल्टा मेरा वेपर है, मैं उसको कंडेंस करूंगा, ये पॉइंट पे मेरा फर्स्ट ड्रॉप
स्टार्टेड कंडक्शन, उसको बोलते हैं हम लोग डिव पॉइंट। क्रिस्टल क्लियर है? हेलो, Yes, yes. क्रिस्टल Guys, क्लियर but एवरीवन? please speak up, guys. Yes, yes. If you understand something, just आप बोलिए कि ये हमें हाँ गाइस सर किसी समझ। कॉलेज में नहीं बताते, मैं आपको लिटरली बोल रहा हूँ, ये सिर्फ दीपक पांडे जो है गेट के, मैंने उनसे पढ़ा है पूरा केमिकल इंजीनियरिंग, तो यही वो बंदा है पूरा गेट इंडस्ट्री में, मैंने सबके लेक्चर्स देखे हैं जितने भी आपके अन अकेडमी के हैं। ये कर्व कैसे आया, नो वन एक्सप्लेन्स इट, कि ये कर्व क्या है, बेसिकली TXY प्लॉट क्या है, ये एक्सप्लेन नहीं करता है कोई। दैट्स व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग, क्योंकि ये पता होना चाहिए। इसके अंदर वाला भी मैं बताऊंगा। ओके तो वेपर है मेरा, तो मैंने कंडेंस किया कंडेंस किया कंडेंस किया, ये टेम्परेचर पे मेरा फर्स्ट ड्रॉप जो है वो कंडेंस हो गया वेपर से, क्योंकि देखो ना ये सुपर हीटेड वेपर है और ये सुपर कूल्ड लिक्विड है, लिक्विड से वेपर कंडेंस होने वाला फर्स्ट ड्रॉप मेरा बबल पॉइंट है, वेपर से फर्स्ट ड्रॉप मेरा लिक्विड में आया, दैट इज माई ड्यू पॉइंट। तो ये मेरा कर्व ऐसे हम लोग बनाते हैं ये कर्व। और बीच में क्या होगा, एनीवन? एम और एन के बीच में क्या होगा, ये जो है मेरा जो कर्सर घूम रहा है, इसमें क्या होगा गाइस, इसमें क्या होगा? एनीवन? इधर तो पूरा लिक्विड है, इधर भी पूरा वेपर है, इसमें क्या है, ये बीच में क्या है, ये डोम के बीच में क्या है इब्राहिम? मिक्सचर। इसको एक वर्ड है, बराबर है, मिक्सचर है, इसको एक वर्ड है, एक Vapor ब्यूटीफुल liquid वर्ड है। mixture. यस, वेपर लिक्विड, अंदर है वेपर Vape- लिक्विड, इधर है। हाँ यस यस पूजा, प्लीज 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 गो Vapor अहेड। liquid mixture. राइट राइट, वेपर लिक्विड, ये अंदर जो है ये होता है वेपर लिक्विड, इधर ही आपका जो है वो ग्राफ है वो बनता है। ओके तो आप कैसे निकालते हो कि ये पॉइंट पे, ये देखो यहाँ पे मेरा कर्सर है, तो इस पॉइंट पे कितना मेरा लिक्विड है और कितना मेरा वेपर है, अभी QR है, QR के बीच में मेरा मिडल पॉइंट है, तो कितना मेरा वेपर है और कितना मेरा लिक्विड है, ये मुझे समझ में आता है विद द हेल्प ऑफ TXY डायग्राम। इसको हम लोग बोलते हैं वेपर लिक्विड इक्विलिब्रिया एट कांस्टेंट प्रेशर। मेरा प्रेशर कांस्टेंट है, मैं टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहा हूं, मैं सॉल्यूशन का कंपोजिशन इंक्रीज करते जा रहा हूं। X एंड Y ये मेरा कंपोजिशंस है, दीज आर माय कंपोजिशंस, एंड इन दिस वे ये पूरा ग्राफ आपका बनता है। ये IIT KGP का जो दिया है ये उन्होंने लिखा है, ये अभी ये राउल्स लॉ है, P इज इक्वल टू P नॉट इंटू एक्स है, PB नॉट बाय एक्स पे, इसके ऊपर ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा, इसके ऊपर सब कुछ ये मल्टी कंपोनेंट वाला पार्ट है। ओके ओके हाँ, तो इतना ये है TXY प्लॉट। तो जो प्लेट्स जो आप बोलते हैं ना, वो प्लेट्स वाला जो आप प्लॉट करते हैं दैट इज समथिंग डिफरेंट। VLE में आपको उस पर्टिकुलर कंपोजिशन पे कितना वेपर का कंपोजिशन है और कितना लिक्विड का कंपोजिशन है ये पता चलता है विद द हेल्प ऑफ द TXY प्लॉट। PXY प्लॉट डिफरेंस है, PXY प्लॉट में आप प्रेशर कम करते हैं एंड टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है। अब मुझे एक चीज बताइए, डेस्टिलेशन कॉलम में प्रेशर ज्यादा होना अच्छा है या फिर कम होना अच्छा है? प्रेशर डेस्टिलेशन को बढ़ावा देता है या फिर उसको नीचे खींचता है? बढ़ावा देता यस है। पूजा, मतलब प्रेशर बढ़ने से डेस्टिलेशन अच्छा होता है? अच्छा होता है ना, क्योंकि उसको यस Sir, यस more अच्छा the होता pressure, more will be the this na. व्हाट? More the What pressure, will be? more will be the separation. आर यू श्योर? नो नो, कम प्रेशर से ज्यादा प्रेशर आएगा तो उसको टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, इसलिए कम प्रेशर अच्छा है। सॉरी, हु सेड दिस? फिर से आप संजय। भी जो बता, संजय, संजय करेक्ट, संजय संजय संजय, परफेक्ट, ब्यूटीफुल आंसर। नहीं तो आपका कॉलम फ्लडिंग भी हो सकता है ना, ज्यादा प्रेशर आएगा या हो सकता है, बराबर। आप हमेशा ये चीज पढ़िए कि प्रेशर अगर आपके कॉलम में ज्यादा हुआ तो उसके इफेक्ट्स पढ़िए। आप चैट जीपीटी आपके पास सब में मोबाइल में है, जस्ट आप कभी ऑफिस में जा रहे हैं, आप अपने लैब में बैठ गए, जस्ट सोचिएगा, इस क्यूरियस रहे कि मेरा मतलब, देखो अगर आपको केमिकल इंजीनियरिंग में सच में करियर करना है तो आपको ये सोचना पड़ेगा, अगर नहीं करना है तो नो इश्यूज, लेकिन आपको करना है तो आप सोच सकते हैं कि यार प्रेशर का कॉलम के ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा। एब्जॉर्प्शन और डेस्टिलेशन पूरा उल्टा है, एब्जॉर्प्शन में प्रेशर ज्यादा रहेगा तो चलेगा, बट डेस्टिलेशन कॉलम में प्रेशर ज्यादा रहने का बहुत निगेटिव इफेक्ट है। आप इवन चैट जीपीटी पे भी डालिए, नहीं तो चैट जीपीटी क्या बताएगा, गूगल पे भी आप डाल सकते हैं, सिंपल गूगल पे भी आपको
ऐसे आर्टिकल से मैं ज्यादा प्रिफर करता हूँ कि कोई भी आईआईटी का है, फिर कोई भी ऐसा आईआईटी का ही नहीं, कोई भी आर्टिकल से इन चैट जीपीटी या फिर कोई किसी से पढ़ने से, इसमें क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन रहता है कि क्या है ये वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम कब होता है एंड दिस ऑल गाइस। ओके, तो डेस्टिलेशन का कंसेप्ट और बहुत है, बट इतना याद रखिए कि प्रेशर ज्यादा होने से डेस्टिलेशन कॉलम में इफेक्ट्स होता है। ओके, और किसी को ये चीज पता है, हम लोग कैलकुलेशन में n-1 करते हैं जो भी नंबर ऑफ प्लेट्स आते हैं मैकैप थैली में। मैकैप थैली किसको किसको किसी ने कॉलेज में पढ़ा है? फाइनल ईयर में साक्षी है, और आई गेस विपुल भी फाइनल ईयर में है। Yes, sir. I am also एंड final year, petrochemical. हाँ हाँ, तो क्यों n-1 क्यों करते हैं विपुल? वाई डू वी डू दैट? -1 द मैकैप थैली में अगर 9 स्टेज होते तो मैं -1 करता हूँ। वाई डू वी डू दैट? Sorry, sir. डोंट नो। पूजा, संजय, साहिल, प्रवीण, कुछ भी बोलो यार, गलत गलत बोलो, कोई इश्यू नहीं है अपने को। -1 हम लोग करते हैं, -2 भी कर सकते हैं, -1 नहीं भी कर सकते। एक चीज मैंने आप लोगों को बताई जब मैंने मैकैप थैली में बात कर रहा था तो। एनीवन? ओके, नो इश्यूज। चलो, इफ देर आर 8 प्लेट्स, ओके, आपका अगर रीबॉयलर अगर आपका पार्शियल वेपराइज कर रहा है तो वो भी एक प्लेट कंसिडर होता है। लेकिन रीबॉयलर क्या प्लेट है क्या? इज रीबॉयलर अ प्लेट? नो, इट्स नॉट अ प्लेट। जहां जब व्हेन यू आर यूजिंग मैकैप थैली मेथड, इट एक्चुअली कंसिडर्स जहां जहां पे भी क्या हो रहा है, पार्शियल वेपराइजेशन, पार्शियल कंडीशन हो रहा है, वो उसको प्लेट कंसिडर करता है बाय डिफॉल्ट। अगर आपका वेपराइजर भी पार्शियल है, पार्शियल वेपराइजर मींस व्हाट, कि फ्यू अमाउंट इट इज बाहर फेंक रहा है एज ए लिक्विड, फ्यू अमाउंट फिर से डेस्टिलेशन कॉलम में जा रहा है, तो वो भी एक पार्शियल वेपराइजेशन का काम कर रहा है। तो मैकैप थैली को क्या लग रहा है कि वो भी एक ट्रे है? नो, इट इज नॉट अ ट्रे। दैट्स व्हाई वी डू -1। इफ माय रिबॉयलर इज टोटल मतलब पार्शियल रिबॉयलर नहीं, मेरा टोटल रिबॉयलर है, और मेरा कंडेंसर भी टोटल है, उस केस में मेरा नंबर ऑफ प्लेट्स कम लगता है, और मैं n मेरा जो है उसमें ना -1 करता हूँ ना -2 करता हूँ। अगर मेरा पार्शियल कंडेंसर है, पार्शियल रिबॉयलर है, तो n-1 कंडेंसर वाला, n-2 रिबॉयलर वाला, इसलिए वहां पे n-2 होता है। इफ माई ओनली रिबॉयलर इज द पार्शियल रिबॉयलर, तो मैं n-1 करता हूं, तो माई टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स विल बी नंबर ऑफ प्लेट्स काउंटेड -1। क्लियर? हेलो, ओके ओके। क्लियर? Yes, sir. टोटल क्लियर? अक्षय, इब्राहिम, पूजा, प्रवीण, साहिल, संजय। Yes, sir. शुभम का तो मैं नाम नहीं लूंगा, शुभम का थोड़ा कम्युनिकेशन का इशू है, वरना वो तो बहुत ही मतलब अनदर लेवल पर्सन है। ओके, ओके, तो डेस्टिलेशन के बारे में वही मेरे को और बताना था। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट है डेस्टिलेशन। जितना पढ़ोगे, केवी नारायणा का थोड़ा सा पढ़ो डेस्टिलेशन, ट्रेबल आपको समझ में नहीं आएगा बीइंग अ फ्रेशर। केवी नारायणा का बुक लो, डेस्टिलेशन पढ़ो, आपको इतना मजा आएगा। आप बस इंटरेस्ट लो थोड़ा बहुत, आपको मैथमेटिक्स आपका सही होना चाहिए। प्रेशर इफेक्ट ऑन डेस्टिलेशन, टेम्परेचर इफेक्ट ऑन डेस्टिलेशन, फ्लैश डेस्टिलेशन, मैकैप थैली का कैलकुलेशन, आपका जो क्यू लाइन इक्वेशन है, आपका स्ट्रिपिंग लाइन इक्वेशन है, आपका रेक्टिफाइंग लाइन इक्वेशन है, व्हाट इज मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, व्हाट इज वेपर प्रेशर, ये पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया है। बहुत ह्यूज टॉपिक है डेस्टिलेशन, बट पढ़ोगे ना तो लाइफ में एज अ केमिकल इंजीनियर कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज डेस्टिलेशन एक केमिकल इंजीनियर का हार्ट है। डेस्टिलेशन से बढ़कर कुछ नहीं है केमिकल इंजीनियरिंग में। डेस्टिलेशन कॉलेज में पढ़ा है, कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो। मैं दूसरा टॉपिक में मूव कर रहा हूँ। यस इब्राहिम, इब्राहिम आपका नॉलेज अच्छा है। महादेव, पूजा, Yes, sir. योर नॉलेज इज गुड इब्राहिम। Thank you, sir. संजय, शुभम, साहिल, और एक कोई तो है उसका वॉइस हमेशा आ रहा है, वो आंसर दे रहा है। आई थिंक सो इट्स संजय और साहिल। यस यस। ओके, एनीवन, कोई क्वेश्चंस डेस्टिलेशन में और कि और क्या मेथड्स होते हैं? एक मैकैप थैली एक मेथड होता है, एक पंचन सैवरेट होता है, और एक लुइस सॉरेल मेथड होता है।
तो मैकैप-थैली के 3 अजम्पशन है। पहला तो कि कांस्टेंट मोलार ओवरफ्लो जो मैंने बताया। सेकंड थिंग इज रिलेटिव वोलेटिलिटी शुड बी लेस देन 2.5 के कम होना चाहिए, और जो टोटल नंबर ऑफ स्टेज है वो 25 से कम होना चाहिए। ये 3 जो है वो अजम्पशंस है मैकैप-थैली के, और वो बाइनरी डिस्टिलेशन के लिए है। फोर्थ थिंग दैट इज फॉर द बाइनरी डिस्टिलेशन, जो कि इंडस्ट्री में नहीं होता है। इंडस्ट्री में 99% केस आर मल्टी कंपोनेंट डिस्टिलेशंस। तो इसलिए जब सुहास वो पूरा कोर्स लॉन्च करेगा तो एक्सपर्ट्स आएंगे, उसमें आपको एक कंसेप्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि डेस्टिलेशन एक्चुअली क्या है, एंड रीबॉयलर क्या है, कंडेंसर क्या है, और ये सब चीज़ें। ओके, फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर एक इंडस्ट्री है, आरसीएफएल राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, और आपका ये एनएफएल, आपका एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, और आपका ये आरएफसीएल बोल के एक है, रोमोगुंडा फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, और एक आपका एचयूआरएल हिंदुस्तान HUR. उर्वरक रिफाइनरी, हाँ एचयूआरएल हिंदुस्तान उर्वरक रिफाइनरी लिमिटेड। ये जो है दे purely work on your fertilizers. Now what is the use of fertilizers? Now anyone who is somehow they are associated with the farming, they'll come to know that fertilizers is very much important for your crops and that all. Okay, so one of the most made fertilizers even by RCFL or even by NFL is your urea. Okay, your urea is made from an ammonia, and एमोनिया के लिए आपका N2+3H2O का रिएक्शन होता है, जहाँ पे आपको NH3 मिलता है, एंड देन हैबर-बॉश प्रोसेस है, और एक जो अलग प्रोसेस है, वेदांत जो पिछला सेशन लिया था, तो ही वर्क्स ऑन द एमोनिया, तो उसको उसके बारे में बहुत पता है। तो मुझे तो इतना नहीं पता है रिगार्डिंग द फर्टिलाइजर्स की क्या होता है, बस आप इतना याद में रखिए कि एमोनिया से ही यूरिया बनता है, और यूरिया के 2 पार्ट्स होते हैं, एक नीम कोटेड यूरिया रहता है और आपका एक नॉर्मल यूरिया रहता है। ओके, तो यूरिया से आपका क्रॉप्स वगैरह मतलब अच्छे होते हैं। सुहास थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकता है यूरिया के बारे में। यस सुहास। अभी यूरिया के बारे में अपन एक्सप्लेन करने जाएंगे तो वो बहुत बड़ा टॉपिक है, यूरिया हो गया या अमोनिया हो गया। सो देखो बेसिकली अभी हम अपना जो टाइम है उससे ज्यादा ये हो रहे। सो यूरिया ये सब चीजें हम इन डिटेल्स हम कोर्स में भी मतलब लेने की सोच रहे हैं, जितना हम कवर कर सकते हैं इन कोर्स, सो उतना हम कवर करेंगे। यूरिया हो गया मतलब हाउ टू डिजाइन ईच एंड एवरी प्लांट, सो वो वाला टॉपिक हम उस पर डिस्कस तो यूरिया सिर्फ फर्टिलाइजर के लिए, स्पेशलिटी केमिकल्स एक रहता है आपका। स्पेशलिटी केमिकल्स में आपके बहुत ज़्यादा हजारडस केमिकल्स और टॉक्सिक केमिकल्स बनते हैं, जैसे हमारे सोलापुर में भी एमआईडीसी में है स्पेशलिटी केमिकल्स का प्लांट, तो वहाँ पे भी एक मतलब यूनिट है जहाँ पे स्पेशलिटी केमिकल्स बनता है। फूड प्रोसेसिंग में अगर आप जाओगे तो आपका बहुत अमूल है और बहुत ज़्यादा ऐसा इंडस्ट्रीज है जहाँ पे आपके फूड प्रोसेसिंग वहाँ पे भी केमिकल इंजीनियर लगते हैं, बट मैंने बहुत ही लीस्ट जगह देखे हैं जहाँ पे केमिकल इंजीनियर्स फूड में काम कर रहे हैं। मोस्टली अगर आप देखोगे तो फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम में ही ज़्यादा पीएसयूज कवर होते हैं। मतलब आप ऐसा समझो, पेट्रोलियम और ये रिफाइनरीज और फर्टिलाइजर्स में ही 95% योर केमिकल इंजीनियर्स यू वर्क ऑन। ओके, देर आर नो अदर regions in which mostly chemical engineers work on. You can say 2% or 3% in specialty chemicals, 2 or 3% in food processing. Sugar and distilleries again, it is closely associated with your fertilizer thing, जहाँ पे आपका जो इथेनॉल वगैरह का जो प्लांट है दैट इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ योर डिस्टिलरीज। पल्प एंड पेपर अगेन आपका जो टिश्यू पेपर्स है। just give me 2 minutes. I will just explain. There is in sugar and distillery there is ZLD plant. सो जेडएलडी प्लांट में क्या होता है, एक प्रोसेस फ्लो ओवरव्यू देता है उसका क्या होता है एक्चुअल में। सो जेडएलडी प्लांट में एक प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट होता है, फिर एक प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, ये फिर एक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट रहता है, फिर एक टर्शियरी ट्रीटमेंट रहता है, देन मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, देन इवापोरेशन, देन क्रिस्टलाइजेशन एंड देन सॉलिड लिक्विड सेपरेशन। ये वाली स्टेजेस रहती है जेडएलडी में। जेडएलडी मतलब आपका क्या, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, जो आपको जीरो लिक्विड डिस्चार्ज है एज पर योर कंट्रोल बोर्ड, जो भी पोल्यूशन बोर्ड रहेंगे उसके नॉर्म से, उस पे आपको फोकस करने के लिए जेडएलडी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही कॉस्टली भी होता है जेडएलडी। इन प्लांट आप जो काम कर रहे हैं अभी इन प्लांट में, आपको सबको पता होगा जेडएलडी क्या है। जो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज में वहाँ पे आपको सॉल्ट एट द प्रोडक्ट मिलता है एट द एंड, जो इंडस्ट्रियल सॉल्ट रहता है। Anyone have question regarding the ZLD?
वेरी नाइस, वेरी नाइस सुहास, बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। मुझे तो देखो, मैं प्योर टेक्निकल हूँ। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपने आईडी भी देखा होगा, मैं कोडिंग से एसोसिएटेड हूँ फिलहाल के लिए। ओके, सो आई हैव बीन नॉट डूइंग प्रैक्टिसिंग केमिकल इंजीनियरिंग सिंस फ्यू ऑफ इयर्स, बट मेरा जो पैशन है वो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए हमेशा है। दैट्स वाई मैं हमेशा रीड करते रहता हूँ या फिर टच रहता हूँ केमिकल इंजीनियरिंग के साथ। बट आई एम नॉट अ वर्किंग प्रोफेशनल, अदरवाइज मैं बहुत ही डेप्थ में जाता हूँ। जितना मुझे मतलब मैं पढ़ता हूँ, जब सुहास बोलता है कि यू हैव टू कंडक्ट द सेशन ऑन दिस, तो उसके बेसिस के ऊपर मैं सेशन कंडक्ट करता हूँ। देखो, तो सुशांत पेन एज टेक्निकल नॉलेज उसका बहुत बढ़िया है, थेरोटिकल इज वेरी गुड, और उसका जो टीचिंग स्किल है ऑलरेडी टीच फॉर मार्गदर्शन, तो उसको बहुत सारे एक्सपीरियंस है टीचिंग का। तो आप एक थेरोटिकल क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन होंगे आपके थेरोटिकल, वो सॉल्व कर देगा आपका। हाँ, क्योंकि इंडस्ट्री में गाइज मैंने भी कभी वर्क नहीं किया है। मतलब मैंने ऐसा समझ सकते हो कि मैंने सिलेबस पढ़ा है, गेट दिया है, और फिर मतलब डिप्लोमा भी थोड़ा पढ़ा था, एंड देन मैंने मतलब थोड़ा सा कोडिंग और थोड़ा सा केमिकल इंजीनियरिंग का मतलब बहुत कम है, मतलब कोडिंग में ज़्यादा है, तो इसलिए थ्योरेटिकल जो भी अपना है वो मुझे पता है। ओके, तो कंसेप्ट है जैसे। सुहास, क्या हमको टाइम अलाउ कर सकता है थोड़ा पंप एक्सप्लेन करने के लिए, 10 to 15 मिनट? यस। हाँ, तो एक्सटेंड कर सकते हैं ना हम लोग, क्योंकि मैं गलती से लेट थोड़ा सा ज्वाइन हो गया ड्यू टू टीम्स इशू। ओके, तो फार्मा में लुपिन है, आपका लुपिन है, और बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज है जहाँ पे फार्मास्यूटिकल सबके बनते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट वांट टू वर्क इन फार्मा, बिकॉज फार्मा में क्या होता है, फार्मा में रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड फार्मा में मतलब जो प्रिसीजन होता है आपकी कैलकुलेशंस का, वो 4th डेसिमल तक जाता है। जैसे लुपिन में बहुत ज़्यादा मेरे फ्रेंड्स थे, तो फॉर एग्जाम्पल इफ योर सम वैल्यू कम्स टू बी 3.34.228, सो यू हैव टू डू 34.022876, तो 4th प्रिसीजन तक वैल्यू लेके जानी पड़ती है, और बहुत ज़्यादा हेडेक होता है फार्माज में। थोड़ा सा मतलब अवॉइड करते लोग फार्माज में जाना, बिकॉज करियर का जो पैकेज भी है थोड़ा सा कम रहता है। सबसे ज्यादा पैकेज आपको रिफाइनरीज में मिलता है इन इंडिया, मतलब पीएसयू में भी जाओगे तो। फार्माज में तो मुझे नहीं लगता एक भी पीएसयू है। जितना भी पीएसयू है वो इधर दे आर इन योर रिफाइनरीज, और इधर दे आर इन योर दिस व्हाट यू से फर्टिलाइजर्स। वेरी लेस मीन्स, मतलब मुझे तो लगता है एक भी पीएसयू नहीं है फार्मा में या फिर स्पेशलिटी केमिकल्स में। मोस्ट ऑफ देम आर इधर इन रिफाइनरीज और दे आर इन द फर्टिलाइजर्स। तो फार्मास्यूटिकल में वो है, लुपिन है, और आपका ये है डॉक्टर रेड्डी एक है, बहुत है, मतलब इप्का लेबोरेटरीज है जो विच दे वर्क इन द फार्मास्यूटिकल्स। न्यूक्लियर इसमें बीआरसी है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, तो इसमें मोर ऑफ मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर्स है। फिशन बोल के रिएक्शन होता है, FISSION, फिशन बोल के रिएक्शन होता है रिएक्टर्स में, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करने के लिए हेवी वाटर प्लांट यूज किया जाता है। तो हेवी वाटर में एक वन ऑफ माय फ्रेंड इज वर्किंग इन बीआरसी हेवी वाटर प्लांट, जो अगर आप परमिट करोगे, अगर आप मतलब बोलोगे सुहास को, तो ही विल ऑल्सो कंडक्ट द सेशन की बार्क में कैसे सिलेक्ट हो जाना है, बिकॉज ही इज द क्लास 1 ऑफिसर इन बार्क। ओमकार राजमाने नाम है उनका, आप लिंक्डइन के ऊपर सर्च कर सकते हैं, ही इज माई बीटेक क्लासमेट। तो वो इस पे काम करता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में फिशिंग रिएक्शन में वो हेवी वाटर का ये बनाता है, हेवी वाटर बनाते हैं, ताकि फिशिंग रिएक्शन स्लो डाउन हो, और आपका जो इलेक्ट्रिसिटी जो बनने का एक रिएक्शन है, मैं नाम भूल गया, हाँ मतलब फिशिंग रिएक्शन ही, वो स्लो डाउन करने के लिए वो हेवी वाटर बनाते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर बीआरसी में और आपका एनपीसीआई में, नेशनल पावर प्लांट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, उधर ज्यादा यूज होता है। वाटर ट्रीटमेंट एंड इन्वायरमेंट, ये तो आपको पता ही है, मतलब बहुत ज्यादा उस मतलब एडिटिव्स वगैरह डाल के आपका फिल्ट्रेशन वगैरह करके, बट इसमें भी ज़्यादा मतलब मोस्ट ऑफ द केमिकल इंडस्ट्री नहीं जाना चाहते, पैसा भी कम है, और मतलब कोर केमिकल से ज़्यादा एसोसिएटेड नहीं है। वनीता एग्रो बोल के एक है पुणे में, जो दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद दिस वाटर ट्रीटमेंट, एंड ओके, नो इश्यूज। ओके, तो मैं थोड़ा सा पंप्स के बारे में आप लोगों को बताना चाहता था, कि बेसिकली मैंने जैसे बोला था ग्रुप में भी कि पंप्स और हीट एक्सचेंजर्स, सॉरी डेस्टिलेशन कॉलम में थोड़ा सा डीप में जाना है। तो मैं तो देखो ऐसा स्लाइड्स वगैरह बनाते नहीं हूँ,